So we are again starting from the last topic we have taken yesterday, relation between design, draft, and lifting plan. Here we have seen how these three things, design, draft, and lifting plan, are interdependent on each other. And their interdependency we have put in 4 different situations, and these 4 situations are summarized here. Totally we will face any one situation out of these 4 situations. First is construction of draft and lifting plan from a given design. Second is construction of draft from given design and lifting plan. So the second case is slightly different from first case, where the lifting plan is also given along with design. So in that case, how we can construct draft? And if design is given along with draft, how we can construct lifting plan, that is given in case number 3rd or situation number 3rd. And the 4th situation is just reverse of first situation, in which case draft and lifting plan are given. So how we can construct view or design? So if we understand any one case, then automatically you will understand all the remaining 3 cases. So first, the most important is to understand the basic concepts. If the design is given, how we can construct draft and lifting plan? Because if draft and lifting plan is given, you can reverse the process and you can construct the design. Similarly, if design and lifting plan is given, just doing slight changes or taking into consideration some points, we can construct draft. And if draft and design is given, we can construct lifting plan. And that will be clear when we will do all the examples, when we will practice all the examples related with these 4 situations. So one example we have taken yesterday. But before that, once again, I will emphasize and I would like to focus on a very important thing without which we cannot construct draft and lifting plan. So there is a principle which is followed to construct draft and lifting plan, and that principle is known as principle of drafting. And if we say in very simple words, the principle of drafting, we can see the ends which work in same order are passed through same hill frame, and the ends which work in different orders requires different hill frame. जिन ends का working order या interlacement order same है, उन ends को हम एक ही hill से पास करते हैं, और अगर इंटरलेसमेंट ऑर्डर डिफरेंट है तो उसको हम डिफरेंट हिल फ्रेम से पास करते हैं. अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल इज देयर दैट वी हैव टू रिमेंबर. बट समटाइम्स टू decrease the load of hill frames, if the ends are having same interlacing order, still we are passing them through different hill frames just to reduce the loading of the hill frames. For example, in one hill frame we are passing 2000 ends, and that will increase load on the hill frame, and their movement will be not so smooth. So for that reason, sometimes we can take 2 hill frames, we can pass 1000 from one hill frame and remaining 1000 from the other hill frame. However, both are having same interlacing order. So both the hills will have the same interlacing order, but the load is divided by 2. Similarly, if the load is even more higher, then we can take 3 hill frames, we can go for 4 hill frames for the same lifting order. In that case, there will be slight change in the rule that the ends which are having same interlacing order will pass through different hill frame. But broadly speaking, the ends which work in same order passes through same hill frame. The ends which work in different order requires different hill frame. And at this moment, it is enough to remember this. And then we will take some other examples in which it will be clear that how we are multiplying the number of hill frames, in what situations we are multiplying the number of hill frames. This example we have taken to explain the first situation yesterday, construction of drafts and lifting plans from given design.
So I think I have explained in detail and everybody have understood how we are constructing draft and lifting plan by following this method. This is one method. I will take another method. You can compare both the methods, and whatever is easy and comfortable for you, you can choose that method, because the final result, the draft and lifting plan, which we are obtaining, will be same in both the cases. So this example is clear to everyone, or do you have any question, any query related with this? Because this is the most important thing. In the industry as well as in the subject also, you will get a design, you will construct a design, and then if you know how we can construct draft and lifting plan, then you can very easily construct draft and lifting plan if the design is given, if you understand this method thoroughly. Sir, Yes. सर नंबर ऑफ हील फ्रेम्स वो टाइप ऑफ ऑर्डर पे डिपेंड होता है क्या कि कितने हील फ्रेम्स यूज करना है? Yes, exactly. How many types of interlacing orders are there? If you see this design minutely from first end to last end, you will see only 4 types of interlacements are there. It means we require 4 hill frames. एक interlacing order के लिए minimum 1 hill frame हमें depute करना होता है. एक interlacing order के लिए 2 भी कर सकते हैं अगर हमें hill frame का load कम करना हो तो. जैसे यहाँ पर हम 4 के बजाय 8 भी ले सकते हैं अगर हिल फ्रेम्स में नंबर ऑफ एंड्स ज्यादा हो रहे हैं. इट विल बी इन द केस वेयर वेरी हाई ईपीआई इज देयर इन द फैब्रिक, और हाई ईपीआई है तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ एंड्स बहुत ज्यादा होंगे, लगभग 8000 10,000 का अगर बीम है तो उसमें क्या होगा, अगर हम 4 हिल फ्रेम भी लेते हैं तो हर हिल फ्रेम पे 2000 या 2500 एंड्स अगर पास हो रहे हैं तो वो हिल के ऊपर लोड बढ़ाएगा, तो वियर एंड टियर पार्ट्स का ज्यादा बढ़ेगा. उस केस में हम 4 के बजाय 8 हिल फ्रेम्स भी ले लेते हैं. जैसे फॉर प्लेन वी रिक्वायर ओनली 2 हिल फ्रेम्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर गोइंग फॉर 4 हिल फ्रेम्स, और समटाइम्स वी आर गोइंग फॉर 6 हिल फ्रेम्स. तो अगर 4 के लिए जा रहे हैं तो 2 हिल फ्रेम का वर्किंग ऑर्डर सेम रखेंगे और उन 50% एंड्स को 1 से पास करेंगे, 50% को 1 से पास करेंगे. वो हम आगे और समझेंगे, यहाँ पर अभी आपको वो कंफ्यूज करेगा. तो जितने इंटरलेसिंग ऑर्डर्स हैं डिजाइन के अंदर उतने ही हिल फ्रेम्स हमें लेने होंगे. बट हम पहले डिजाइन को पूरा चेक नहीं करते, हम क्या करते, हम स्टार्ट करते फर्स्ट एंड से और उसको फर्स्ट हिल से पास कर देते, जैसा कि हमने यहाँ पर किया. फिर सेकंड एंड को कंपेयर करते हैं फर्स्ट एंड से. इफ इट इज सेम इट विल पास थ्रू सेम हिल फ्रेम, इफ इट इज डिफरेंट इट विल पास थ्रू डिफरेंट हिल फ्रेम. तो इन दिस केस सेकंड इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट वन, तो इसको हम नेक्स्ट हिल से पास कर देंगे, फर्स्ट के बाद सेकंड से पास कर देंगे. हाउएवर इट इज नॉट एसेंशियल कि हम फर्स्ट से ही स्टार्ट करें और सीक्वेंस में बढ़े, बट फॉर इजीनेस, फॉर कन्वीनियंस वी आर डूइंग दिस. बट इन सम केसेस इट इज नॉट एडवाइजेबल, एंड दैट वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. देन ओनली इट विल बी क्लियर कि हम डायरेक्ट फर्स्ट से पास नहीं करते हैं या सीक्वेंस में पास नहीं करते हैं, उसके कुछ रीजंस होते हैं. बट इन दिस केस दैट रीजन इज नॉट अप्लाइड. सो हम इसको बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए अभी सेकंड एंड पर गए, सेकंड एंड को देखा कि ये डिफरेंट है तो हमने सेकंड हिल से पास कर दिया. सेकंड हिल मीन्स second horizontal line and second end means second vertical line. तो second vertical line और second horizontal line जहां पर intersect कर रही है वहां पे हमने क्रॉस कर दिया. इट मींस सेकंड एंड सेकंड हिल से पास हो रहा है. ये सबको क्लियर होना चाहिए. अगर क्लियर नहीं है तो थोड़ा प्रैक्टिस करें और उसको क्लियर कर ले, और फिर भी डाउट से तो क्वेश्चन करें लेकिन क्लियर कर ले. फिर एंड नंबर 3 पे मूव करें और प्रीवियस 2 एंड्स हम पास कर चुके तो उनसे कंपेयर करें. इफ इट इज डिफरेंट तो डिफरेंट हिल फ्रेम से, सेम है तो सेम हिल फ्रेम से. बस आपको केवल हर एंड पे मूव करना है सीक्वेंस में, एक के बाद एक सक्सेसिव ऑर्डर में 1 2 3 4 24 एंड्स तक ऐसे मूव करते जाना है, और हर एंड को पिछले एंड से कंपेयर करना है. इफ इट इज सिमिलर तो उसी हिल फ्रेम से पास करना है, यानी कि उसी हॉरिजॉन्टल लाइन में हमें मार्क लगाना है. और अगर सिमिलर नहीं है तो उसको नई हिल फ्रेम चाहिए. तो इन दैट वे विल मूव अप टू 4 हिल फ्रेम्स इन दिस केस, क्योंकि 4 तरह के इंटरलेसिंग ऑर्डर है. अगर 5 तरह के होंगे तो हम नेक्स्ट हिल पे जाएंगे, 5th हिल पे तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन और यूज करेंगे ग्राफ की. अगर 6 है, 6 डिफरेंट टाइप के इंटरलेसिंग ऑर्डर तो हम 6 यूज करेंगे. राइट, ये और एग्जांपल्स हम लेंगे, उसमें क्लियर होगा. सो आई थिंक दिस एग्जांपल इज क्लियर टू एवरीवन. एनी अदर क्वेश्चन? यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन. इफ यू वांट टू रिपीट इट वी कैन रिपीट इट, क्योंकि बेसिक जो फंडामेंटल्स है हम उसी पर स्ट्रेस करेंगे. जैसे हम बेसिक फंडामेंटल्स कंप्लीट करेंगे देन वी विल गो विद
जेट स्पीड। फिर हम स्पीड बढ़ा देंगे क्योंकि व्यू दिया, फिर ड्राफ्ट लिफ्टिंग प्लान आपको बनाना होगा, तो जस्ट मैं व्यू और व्यू की कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा एंड टॉपिक विल बी कंप्लीटेड। बट बेसिक फंडामेंट टू ऑफलाइन क्लासेस एंड कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नॉट दैट मच better way in online। मैं आपकी कॉपी या आपके ग्राफ्स चेक नहीं कर सकता हूँ। इन ऑफलाइन क्लास आई यूज टू चेक द ग्राफ्स एंड आई कैन नो कौन स्टूडेंट्स प्रॉपर कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं चेक नहीं कर सकता हूँ। तो अगर आपको लर्न करना है तो you note down the examples on the graph paper, and also whenever I give you some assignments, then you try to complete the example, this one, and you can send me the pic on the WhatsApp, so I will check it. If you want that, I can do that also. So I think we can proceed. Yes, sir. Okay. Next example, again same case I am taking to make it more clear and to explain another method. इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने जो किया है another method, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ। इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट एंड को फर्स्ट शीट से पास किया और फिर पूरे डिजाइन में जाके चेक किया कि फर्स्ट एंड का जो इंटरलेसिंग ऑर्डर है, यानी कि 2 अप 2 डाउन, वो और किन किन एंड का है, और जिन जिन एंड का है उसको हमने फर्स्ट शीट से पास कर दिया। तो यहाँ हम हिल्ड वाइज चल रहे हैं, और फर्स्ट शीट से पास करने के बाद उस ऑर्डर को हमने यहाँ पर फर्स्ट शीट पर वर्टिकली कॉपी भी कर दिया 2 अप 2 डाउन को। तो साइमल्टेनियसली हम ड्राफ्ट और लिफ्टिंग प्लान दोनों बना रहे हैं, बट हिल्ड वाइज बना रहे हैं। फर्स्ट शीट को कंप्लीट किया, जो एंड्स उससे पास हो रहे हैं हमने यहाँ पर शो कर दिया बी के अंदर, और उस एंड का इंटरलेसिंग ऑर्डर हमने सी पे शो कर दिया। फिर ऐसे सेकंड एंड पे गए, सेकंड एंड का ऑर्डर देखा, फिर उसको कंपेयर करते हुए पहले सभी एंड्स को जो कि सेकंड एंड से सिमिलर इंटरलेसिंग ऑर्डर वाले हैं, उनको सभी को हमने एक साथ पहले मार्क्स लगा दिए। तो यहाँ हिल्ड वाइज हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट मेथड इज another example I am taking. The design is given here. So just focus here first. The design is indicated at A. तो पूरा डायग्राम नहीं देखें आप, केवल यहाँ फोकस करें and try to see the interlacing order. इस तरह का इंटरलेसिंग ऑर्डर इस डिजाइन का। एंड नंबर 1, 1 डाउन 1 अप, 1 डाउन 1 अप, 1 डाउन 1 अप, 1 डाउन 1 अप, 1 डाउन 1 अप। 1 down 1 up is repeating for 5 times. First, always see the design size. ये डायरेक्ट मैंने जो डायग्राम लिया है बुक से लिया है, वहां पे डिजाइन साइज लिखा हुआ नहीं है, बट हमारी प्रैक्टिस में हमेशा रखना, हमें जस्ट डिजाइन के नीचे उसका साइज जरूर लिखना है। और डिजाइन और ड्राफ्ट के बीच में यहाँ पे सीक्वेंस में एंड नंबर लिखना है। जैसे यहाँ एंड नंबर 1 लिखना, 2 लिखना, 3 लिखना, 4 लिखना, 5। उससे बेनिफिट क्या होगा, जब लार्जर साइजेस के आप डिजाइन बनाएंगे तो अगर आपको 8th एंड पे जाना तो आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा बार बार। अभी जैसे मुझे यहाँ पे देखना हो कि 9th एंड कौन सा है, तो मुझे यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और भाई अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मुझे साइज भी मालूम पड़ रहा है, मुझे पर्टिकुलर एंड पे पहुंचना है, मैं उस पर पहुंच सकता हूँ, उसका इंटरलेसिंग ऑर्डर देखना है, मैं देख सकता हूँ। तो आप प्रैक्टिस में ये रखें, हम ऑफलाइन क्लासेस में भी यही करते हैं, डिजाइन और ड्राफ्ट के बीच में जो स्पेस हम छोड़ रहे हैं, चाहे आप एक स्पेस ज्यादा छोड़ दें, लेकिन वहां पर सीक्वेंस में एंड नंबर जरूर लिखें। एंड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दिस। और यहाँ पर हिल नंबर लिखें H1 H2 H3 H4। सिमिलरली यहाँ पर लिखें H1 H2 H3 H4, और यहाँ पर लिखे पिक नंबर दोनों के बीच में, डिजाइन और लिफ्टिंग प्लान के बीच में बॉटम से स्टार्ट करें, पिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे आप अगर लिख देते हैं तो आपके मिस्टेक्स भी कम से कम होगी। कई बार स्टूडेंट्स 10 की जगह 11 का ग्राफ सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर एक खाली छोड़ाते हैं या फिर उसमें कुछ भी भर के आ जाते हैं और पूरा डिजाइन उनका गलत होता है। तो ये सब लिखने से आपका जो डिजाइन में मिस्टेक होने का चांस है वो मिनिमाइज या 0 हो जाएगा, एंड यू विल गेट 100% मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो मेक इट प्रैक्टिस। ऑफलाइन क्लास में तो मैं यही प्रैक्टिस रखता हूँ, बट यहाँ पर क्योंकि मैंने डायरेक्ट डायग्राम उससे लिए हुए हैं, तो वहां पर बुक में ये उन्होंने ये चीज इंडिकेट नहीं किया हुआ है। सो सी द डिजाइन, फर्स्ट एंड का इंटरलेसिंग ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, इट इज नोन एज इंटरलेसिंग ऑर्डर। जैसे पूछा कि फर्स्ट एंड का इंटरलेसिंग ऑर्डर क्या है, इट इज 1 डाउन 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन। इसको आप 1 अप 1 डाउन भी नहीं बोल सकते, इट इज 1 डाउन 1 अप। जहां से स्टार्ट हो रहा है वही बोलना पड़ेगा। अगर डाउन से स्टार्ट है तो डाउन बोलेंगे,
अब से स्टार्ट तो अब बोलेंगे। सेकंड एंड इज, सेकंड एंड का वर्किंग ऑर्डर या इंटरलेसिंग ऑर्डर क्या है? 5 up, 5 down. 5 अप 5 डाउन। थर्ड एंड 1 down, 1 up, 1 down, 1 up, 1 down, 1 up. यस, एंड फोर्थ एंड 5 अप 5 डाउन। इस तरह से आप देख पूरा इंटरलेसिंग ऑर्डर चेक कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर जो सेकंड मेथड जो मैं बोल रहा था आपको, हम इसमें हिल्ड वाइज मूव नहीं करके एंड वाइज मूव कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा मैंने उस एग्जांपल में भी लिया था वो मेथड। फर्स्ट एंड पे आए और सीधा इसको फर्स्ट हिल्ड से पास कर दें, ठीक है? बिकॉज फर्स्ट एंड इज हैविंग न्यू इंटरलेसिंग ऑर्डर, इसको एक हिल फ्रेम हमें देना ही है, तो उसको हमने फर्स्ट हिल फ्रेम दे दिया। सेकंड एंड पे मूव करें और उसका इंटरलेसिंग ऑर्डर फर्स्ट एंड से कंपेयर करें, इट इज एंटायरली डिफरेंट, 5 अप 5 डाउन, सो इट विल रिक्वायर अनदर हिल फ्रेम, तो इसको सेकंड हिल से हमने पास कर दिया। मूव ऑन थर्ड एंड, कंपेयर विद द फर्स्ट एंड सेकंड, इज इट सेम और डिफरेंट? सेम। इट इज सेम एज फर्स्ट एंड। और फर्स्ट एंड को हमने कौन सी हिल से पास किया है? फर्स्ट से। फर्स्ट से, तो इसको भी हम फर्स्ट से ही पास कर देंगे, राइट? Then Yes, move on the fourth end, compare with the previous 3 ends. Is it similar with any end? सेकंड Second एंड same Second. है। और सेकंड को हमने किससे पास किया? यहाँ से देखें, सेकंड हिल से आप Second hill सेकंड हिल से. से पास किया, इसलिए फोर्थ एंड को भी सेकंड हिल से पास करेंगे। तो फोर्थ एंड जहाँ पे है सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने मार्क कर दिया, इसका मतलब फोर्थ एंड को भी हमने सेकंड हिल से पास कर दिया। अगेन कंपेयर द फिफ्थ एंड विद द प्रीवियस एंड, दिस इज सेम एज फर्स्ट एंड थर्ड, और फर्स्ट और थर्ड को हमने फर्स्ट से पास किया हिल से, तो ये इसको भी फर्स्ट हिल से पास करेंगे। गेटिंग द पॉइंट? गेटिंग दिस? Yes, समझ में आ sir. रहा है? समझ में आ रहा है? Then move on the sixth end and compare with the previous ends. Is it same or different? Different. It is different. Even you can say it is exactly opposite of first, third and fifth. First का जो ऑर्डर है उसका एग्जैक्टली अपोजिट है। जहां पे फर्स्ट में डाउन है, यहाँ पे अप है, वहां अप है, यहाँ पे डाउन है। अगर ऐसा होता तो इसको हम बोलते हैं एग्जैक्टली अपोजिट ऑर्डर। इसको नया हिल फ्रेम चाहिए, तो हमने इसको थर्ड से पास कर दिया। सेकंड के बाद थर्ड आएगा, इसको थर्ड से पास कर दिया। फिर अगेन सेवंथ एंड पे जाएं, सेवंथ एंड का इंटरलेसिंग ऑर्डर देखें, इट इज 5 डाउन 5 अप, विच इज अगेन डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस 3 एंड्स। तो हम इसको नया हिल फ्रेम से पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट हिल फ्रेम क्या होगा? फोर्थ हिल फ्रेम। तो आप देखिए हमने सेवंथ एंड को फोर्थ हिल फ्रेम से पास कर दिया। फिर एट्थ देखें और कंपेयर करें प्रीवियस एंड से, किससे सिमिलर है ये? एट्थ एंड किससे सिमिलर है? एट्थ एंड क्या नहीं दिखाई दे रहा है? एट्थ एंड किससे सिमिलर है? सिक्स्थ को किससे पास किया आपने? हिल्ड नंबर 4 3 से। 3 से पास किया, तो थर्ड से किया, तो इसको भी थर्ड से कर दें। तो थर्ड ही लाइन में जाके हमने क्रॉस लगा दिया। नाउ नाइन्थ, Seventh. नाइन्थ सेम इज सेवेंथ वी हैव पास फाइव। फोर्थ हिल फ्रेम, इसको भी फोर्थ हिल फ्रेम से पास करेंगे, तो क्रॉस लगा देंगे फोर्थ हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है? नाइन्थ वर्टिकल लाइन और फोर्थ हॉरिजॉन्टल लाइन में क्रॉस लगा दिया। देन लास्ट एंड, टेंथ एंड, Sixth. इट इज सिमिलर एज सिक्स्थ, और सिक्स्थ को हमने पास किया है थर्ड से, तो इसको भी हमें थर्ड से ही पास करना पड़ेगा। तो हमने थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्रॉस कर दिया। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द ड्राफ्ट। All the 10 ends in the repeat. There are 10 ends in the repeat. Design का size है 10 cross 10. 10 ends and 10 picks. You can count vertical lines and horizontal lines, and you can write here at the bottom of the design 10 cross 10. In bracket, you can write the size 10 cross 10. First 10 means ends per repeat. Second 10 means picks per repeat. ठीक है? तो all the 10 ends हमने पास कर दिए. It means हमारा जो ड्राफ्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें लिफ्टिंग प्लान पे आना है। तो लिफ्टिंग प्लान पे यहाँ आ जाए। मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ आपको, स्टेप बाय स्टेप नहीं चल रहे हैं, ये स्टेप्स दिखाई हुई है। पहले फर्स्ट एंड को किया, फिर सेकंड किया, फिर थर्ड किया, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर सेवेंथ, फिर एट्थ, फिर नाइन्थ और फिर 10th यहाँ पे आया। मैंने आपको यही एक्सप्लेन कर दिया पूरा, और वही आपको करना है।
उसके बाद आपको लिफ्टिंग प्लान बनाना, तो लिफ्टिंग प्लान डायरेक्टली हम यहाँ आ जाते हैं। दिस इज फाइनल लिफ्टिंग प्लान। ये स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और ये लास्ट स्टेप है। तो हमें ये स्टेप्स नहीं बनानी है, हम डायरेक्टली, अब क्योंकि आपको समझ में आ गया तो हम डायरेक्ट इस पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये लाइंस इसलिए बनाते हैं करेस्पॉन्डिंग हील्ड को इंडिकेट करने के लिए। ड्राफ्ट में ये फर्स्ट हील्ड है और लिफ्टिंग प्लान में ये फर्स्ट हील्ड है। लिफ्टिंग प्लान में हील्ड्स वर्टिकल स्पेस से इंडिकेट होती है और ड्राफ्ट में हॉरिजॉन्टल स्पेस है। तो ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल स्पेस इज इंडिकेटिंग हील्ड नंबर 1 इन द ड्राफ्ट एंड फर्स्ट वर्टिकल स्पेस इज इंडिकेटिंग हील्ड नंबर 1 इन द लिफ्टिंग प्लान। तो इस हील्ड का वर्किंग ऑर्डर क्या होगा? इस हील्ड का वर्किंग ऑर्डर कौन से एंड से सिमिलर होगा? एंड नंबर फर्स्ट, एंड नंबर फर्स्ट, एंड नंबर थर्ड, एंड नंबर फिफ्थ। यहाँ देखें इस हील्ड से कौन कौन से एंड्स पास हो रहे हैं, 1, 3, 5, और ये तीनों एक से पास हो रहे हैं। इसका मतलब सबका सिमिलर वर्किंग ऑर्डर है, सिमिलर इंटरलेसिंग ऑर्डर है, इसीलिए एक से पास हो रहे हैं। तो किसी भी एक को आप देख लें, दिस इज 1 डाउन 1 अप, 1 डाउन 1 अप, 1 डाउन 1 अप, 1 डाउन 1 अप। इस 1 डाउन 1 अप को यहाँ पे आप कॉपी कर दें। यहाँ फर्स्ट स्टेप में यहाँ किया है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे 1 डाउन 1 अप, 1 डाउन 1 अप, 1 डाउन 1 अप, 1 डाउन 1 अप को आप कॉपी कर दें। ये एंड नंबर 1 का जो ऑर्डर है वही हील नंबर 1 का ऑर्डर होगा, या हील नंबर 1 का जो ऑर्डर होगा वही एंड्स का ऑर्डर होगा। फाइनली हम लूम पे क्या करते हैं, हील्ड को लिफ्ट एंड लोअर करते हैं, तो हील्ड का जो ऑर्डर होगा वही एंड का ऑर्डर होगा। तो यू विल गेट द सेम ऑर्डर ऑफ द एंड्स, दोज एंड्स व्हिच आर पासिंग थ्रू दैट हील फ्रेम, right? Now move on the second horizontal line, see which ends are passing through this, second and फोर्थ। second and fourth का ऑर्डर देख लें, 5 up 5 down। यहाँ आए सेकंड लाइन के अंदर, जैसे यहाँ सेकंड लाइन लिया, सिमिलरली यहाँ पर सेकंड लाइन 5 up 5 down यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है। Then move on third hill frame, see the ends which are passing through this, 6, 8, 10th, 6, 8, 10th, और इनका वर्किंग ऑर्डर क्या है, 1 up 1 down 1 up 1 down 1 up 1 down 1 up 1 down 1 up 1 down। इसको आगे थर्ड वर्टिकल लाइन पे कॉपी कर दें, 1 up 1 down। एंड लास्ट फोर्थ हिल, एंड नंबर 7 and 9 आर पासिंग थ्रू फोर्थ हिल फ्रेम, और जिनका वर्किंग ऑर्डर है 5 डाउन 5 अप। तो यहाँ फोर्थ वर्टिकल स्पेस पे आए और यहाँ पे 5 डाउन 5 अप को कॉपी कर दें। सो यू विल गेट suitable draft and lifting plan to construct this design. So if the design is given in this way also we can construct draft and lifting plan. तो यहाँ पर हम end wise move कर रहे हैं और वहाँ पर हम hill wise move कर रहे थे, but final result is same. Finally draft and lifting plan will be similar, either you are doing by first method or second method. So I think this is clear. Is it clear? Yes sir. Very good. Yes sir. And suppose 4000, suppose on the weaver's beam, write down on the weaver's beam, in this example, in this case, in this fabric, if we have 4000 ends on weaver's beam, 4000 ends on weaver's beam, total ends on weaver's beam is 4000. तो फर्स्ट हिल में कितने वायर्स होंगे, सेकंड हिल में कितने वायर्स होंगे, थर्ड हिल में कितने वायर्स होंगे और फोर्थ हिल में कितने वायर्स होंगे? गेटिंग द क्वेश्चन? आई एम टॉकिंग अबाउट हिल कैलकुलेशन। मैं हिल कैलकुलेशन का एक और एग्जांपल, एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। अगर सपोज फर्स्ट टोटल 4000 एंड्स हैं वीवर्स बीम पे, तो आपको ये बताना है कि फर्स्ट हिल फ्रेम, सेकंड हिल फ्रेम, थर्ड हिल फ्रेम और फोर्थ हिल फ्रेम में कितने कितने हिल्ड वायर्स होने चाहिए, विच इज नोन एज हिल्ड कैलकुलेशन। मीन्स कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ हिल्ड वायर्स रिक्वायर्ड ऑन ईच हिल फ्रेम फॉर दैट पर्टिकुलर फैब्रिक। कैन यू कैलकुलेट? 1000 hill wires. 1000 sir. 1000 each. Yes sir. Sir. 1000 कैसे होंगे? You see the repeat. The repeat of draft is 10 ends. ड्राफ्ट की रिपीट 10 एंड्स के ऊपर है। 10 एंड में से फर्स्ट हिल से कितने एंड्स पास हो रहे हैं? आउट ऑफ 10, हाउ मेनी एंड्स आर पासिंग थ्रू फर्स्ट हिल फ्रेम? 3. 3. Out of 10, how many ends are passing through hill number 2? 2. 2. From 3, 3. किसने अनम्यूट कर रखा बेटा? प्लीज म्यूट योरसेल्फ।
भगवान ने इंसान बनाया, बिहेव लाइक ह्यूमंस, नॉट लाइक monkeys. When there is no need to unmute, why you are unmuting? Unmute only when you have to speak. When you are answering or you are asking some question, only then unmute yourself and ask the question and again mute yourself. ऑनलाइन क्लासेस करते हुए पूरा 1 साल होने को आ गया बेटा. अब तो आपको प्रैक्टिस में आना चाहिए सब चीजें. बार बार बोलना, क्लास को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगता है. यस, एंड हिल नंबर 3 से 3 एंड्स पास हो रहे हैं और हिल नंबर 4 से 2 एंड्स पास हो रहे हैं आउट ऑफ 10. मैंने पहले ही बोला था आपको एक हिल से कितने एंड्स पास हो रहे हैं रिपीट के अंदर. सो नंबर ऑफ एंड्स पासिंग थ्रू दैट हिल फ्रेम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंड्स इन द रिपीट मल्टीप्लाई बाय टोटल एंड्स. You can note down number of ends passing through that hill frame, number of ends passing through that hill frame divided by number of ends per repeat divided by multiplied by total number of ends. So here hill number 1, 3 upon 100, 3 upon 10 into 4000. कितना होगा? 1200. 2 upon 10, hill number 2, 2 upon 10 multiplied by 4000. 800. Then again 3, थर्ड में 3 है तो 1200 और फोर्थ में 2 एंड्स पास हो रहे हैं आउट ऑफ 10 तो वहां पर 800. यानी कि फर्स्ट और थर्ड हिल से 1200 एंड्स पास होंगे और सेकंड और फोर्थ हिल से 800 एंड्स पास होंगे. और 1200 plus 800 plus 1200 plus 800 टोटल इट विल बी 4000. तो 4000 को 10 से डिवाइड करने से 4000 को 4 से डिवाइड करने से नहीं आएगा. वो कब होगा? अगर हर हील्ड में एक रिपीट के अंदर अगर हर हील्ड से इक्वल नंबर ऑफ एंड्स पास कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल इसमें सभी में 3 3 3 3 होते हैं. अगर 12 की रिपीट होती तब आप उसको डायरेक्टली डिवाइड करके निकाल सकते हैं. अदरवाइज आपको ड्राफ्ट को कंसीडर करके ही हिल्ड कैलकुलेशन करना है. फॉर हिल्ड कैलकुलेशन यू हैव टू कंसीडर टोटल नंबर ऑफ एंड्स एंड ड्राफ्टिंग ऑर्डर. ड्राफ्टिंग ऑर्डर से आपको ये मालूम पड़ेगा कि पर्टिकुलर हिल्ड से एक रिपीट में कितने एंड्स पास हो रहे हैं. सो यू कैन टेक दोज एंड्स and divided by total ends in the ends per repeat and multiplied by total ends. In that way you can calculate number of hilled wires required on each hill frame and that is known as hill calculation. So I think this is second example in support of first case, so it should be very clear to you. Then another example is there and here is the design. डिजाइन इज इंडिकेटेड एट पी. इन सबको आप भूल जाएं, जस्ट आप यहां फोकस करें. क्या रिपीट साइज क्या है यहां पर? नो, रिपीट साइज बेटा. रिपीट क्या, डिजाइन का साइज क्या है? कितने एंड्स और कितने पिक्स हैं? हाउ मेनी एंड्स? 24 एंड्स एंड 8 पिक्स. यहाँ बिल्कुल डिजाइन के बॉटम में लिखना होता है अपने को 24 into 8. 24 वर्टिकल स्पेसेस, 8 हॉरिजॉन्टल स्पेसेस, 24 एंड्स एंड 8 पिक्स. ओके, how much time is remaining? Yeah, time is there still, more than 5 minutes. So please note down in the graph, note down on the graph paper the design. First note down the design on the graph paper, only design. सबके पास ग्राफ है? सबके पास ग्राफ है क्या? ओके, सो नोट डाउन. आई विल स्पीक. आपको दिख भी रहा है और मैं बोलता भी जाऊंगा और आप नोट करते जाएं जल्दी से. 5 मिनट में इसको कंप्लीट करना है. 24/8 का ग्राफ सेलेक्ट कर लें. ग्राफ में सबसे नीचे की तरफ 24/8 का एक रेक्टेंगल बनाएं पेन से, ताकि वो आपको विजिबल होगा अलग से. मीन्स उस स्पेस में आपको काम करना है. बना लिया या बना रहे हैं अभी? बना रहे हैं सर. बनाओ, चलो. ग्राफ है आपके पास? यस सर. बस ग्राफ में स्केल की हेल्प से 24 पे एक लाइन खींचो, एक नीचे की तरफ और एक 8 के बाद, और फिर उसको एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दो दोनों तरफ लाइन बना करके. इसके लिए आप स्केच पेन यूज कर सकते हैं,
अच्छा पेन यूज कर सकते हैं। पेंसिल से आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ग्राफ में भी ब्लैक लाइंस है और पेंसिल में भी ब्लैक लाइंस होगी तो आपको दिखाई नहीं देगी। रेड पेन यूज कर सकते हैं। सर कलर पेन्स यूज हो जाएंगे, यस कलर पेन। स्केच पेन। यस तो आपको बहुत इजीली विजिबल होना चाहिए कि भाई ये एरिया है जिसमें मुझे काम करना है। कई बार हम एरिया से बाहर चले जाते हैं, तो आपको जो भी ठीक लगे, रेड पेन यूज करें, स्केच पेन यूज करें, और साथ में स्केल रखें ताकि स्ट्रेट लाइन खींच पाए आप। 24 पे एक स्ट्रेट लाइन खींचें नीचे की तरफ, ऊपर सेम सिमिलर उसी में जाके ऊपर 8 के बाद 24 की एक लाइन खींचें, फिर दोनों तरफ 8 की लाइन कंप्लीट करके रेक्टेंगल कंप्लीट कर लें। और ये बहुत फास्ट करना है आपको क्योंकि टाइम यही बचाना है। जनरली जो फैब्रिक स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आती है, टाइम की प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो आपको थोड़ा स्पीड का ध्यान रखना पड़ेगा। हाउ वी कैन सेव द टाइम। कंप्लीटेड, बन गया बेटा? Yes, sir. यस, नोट डाउन। अब यहाँ पे एंड नंबर लिख लें आप, डिजाइन के जस्ट ऊपर 1 से लेके 24 तक लिख डालें। यहाँ पर, यहाँ से 1 से स्टार्ट करें और छोटे छोटे लेटर्स में जो कि ग्राफ में आ जाए 1 2 3 4 अप टू 24 लिख लें उसको। जैसे ही हो तो आप बोल दे सर कंप्लीटेड, तो मैं आगे बढ़ूंगा। Did it, sir? Yes, sir. Complete. ओके नाउ जैसे मैं बोलता जाऊंगा, देखते भी जाएं और नोट करते जाएं। फर्स्ट एंड 4 अप 4 डाउन, 4 क्रॉस लगा दें। ऐसा जरूरी फील करना जरूरी नहीं, 4 क्रॉस लगा दें और 4 को ब्लैंक छोड़ दें। फर्स्ट एंड इज 4 अप 4 डाउन। सेकंड एंड इज 1 डाउन 4 अप, और 3 डाउन ऑटोमेटिकली बच जाएगा इसलिए मैं उसको नहीं बोल रहा हूं। सेकंड एंड 1 डाउन 4 अप। थर्ड एंड 2 डाउन 4 अप, एंड फोर्थ एंड 3 डाउन 4 अप, और 1 डाउन ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। फोर्थ एंड तक नोट कर लिया? हाँ सर। ओके Yes, नाउ sir. Yes, sir. नाउ फिफ्थ एंड 3 अप 4 डाउन 1 अप। रिपीट करने का जरूरत हो तो बोल देना, अदरवाइज आई विल नॉट रिपीट। एंड नंबर 6, 2 अप 4 डाउन 2 अप। थोड़ा फास्ट करेंगे। एंड नंबर 7, 2 डाउन 4 अप। 8, 3 डाउन 4 अप। 9th, 4 डाउन 4 अप। 10th, 1 up 4 down 3 up। 11th, 1 down 4 up। 12th, 4 up 4 down। 13th, 4 down 4 up। 14th, 1 up 4 down 3 up। 15th, 2 up 4 down 2 up। 16th, 3 up 4 down 1 up। 17, 3 down 4 up। 18th, 2 down 4 up। 19th,